everyone. Welcome again to Disha's Toppers Corner, and today we have with us Mr. Waseem Ahmad Bhat. Welcome, sir, and congratulations once again. Thank you so much. Thank you. So we are very happy to have you here, and we are going to ask a few questions, जिससे कि जो हमारे अभी current UPSC aspirants हैं, उनको थोड़ा motivation मिले और guidance भी मिले. So without further ado, let's start the interview. So first of all, I would like to ask, sir, ये आपका कौन सा attempt था? So this one was my third attempt. And last attempt also you secured 225 rank, right? Yes, in CSE 2020, which was my first attempt, I secured All India rank 225, and this one was my third attempt. That is amazing. And you decided to go for another attempt because you wanted to improve your rank and join the IS. Yeah, right. ओके तो ये इस तरीके से अलाउड होता है कि अगर एक बार आपने ज्वाइन कर ली कोई सर्विसेज और ट्रेनिंग भी कर ली तो यू कैन अगेन फर्दर इम्प्रूव योर रैंक एंड यू नो ज्वाइन अदर सर्विसेज. हाँ बिल्कुल ऐसा होता है कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द सर्विसेज दैट आर करंटली देयर अदर देन IAS एंड IFS, ये सारी सर्विसेज के बगैर आपको कोई भी सर्विस मिलेगी तो आप फिर से एग्जाम लिख सकते हो. बट इफ यू गेट IFS देन यू कैन नॉट राइट द एग्जाम अगेन अंटिल यू रिजाइन, or if you get IAS, you cannot write the exam again. Okay, तो आपको अभी कैसा लग रहा है और घर में सबका कैसा रिएक्शन है? What is this celebrity feeling? Tell us. अभी तो almost it has been 1 month since the result and अभी तक वो feeling constantly मतलब feel हो रहा है कि it's still sinking in. So I am feeling quite good, and especially my parents and my siblings, they are very happy. Every day they call me and they say the same thing over and over again. वाओ, और ऑब्वियसली आपको पता तो होगा कि आपका हो जाएगा जिस तरीके से आपने प्रिपरेशन करी थी, बट क्या आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि इतनी अच्छी रैंक आएगी? So इस time, because last time I had got 225 rank, so this time I thought maybe I will be in the list, but I had what was actually difficult for me was to get into top 70 for IAS, but I hadn't expected rank 7. So I was thinking whatever I would get in top 70, I would be very happy with that. But then I saw the result and I was 7, and वो तो काफी feeling, obviously it's a different, nobody can expect that. So only the top 70 can get into administrative services. Yes, in the unreserved category, yes. Okay, और जो top 70 होते हैं, they can go for any services they like, right? Top 70, yes, they can mostly go for it. So why do you want to go for IS? Why not IFS or IPS? So regarding my choice, because I was already in revenue service, so मेरा ये था कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मुझे ज़्यादा डाइवर्सिटी देगी, अलग अलग जगह काम करने का मौका देगी. सो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस दैट आई थिंक. एंड अनदर आई थॉट कि बिकॉज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हैज वन थिंग व्हिच इज दैट इट हैज पीपल कनेक्ट, कि every officer who is in Indian administrative service has a lot of goes to fields and talks to people and लोगों की प्रॉब्लम्स सुन के उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो वो वाली चीज़ मुझे अच्छी लगती थी और मैंने इसलिए ट्राई किया था. Otherwise, I was also comfortable in Indian Revenue Service. So मेरा अभी ये था कि या तो मैं Indian Revenue Service fine है if I don't get IAS. Otherwise, if I get IAS, then I will go there. आपका educational background क्या है sir? So मेरा educational background है BTech in Civil Engineering, NIT Srinagar से मैंने किया था, और उससे पहले मोस्टली मैंने स्कूलिंग अपने टाउन से ही की थी. ओके, तो आपने सिविल इंजीनियरिंग करी, ये कब आपको ख्याल आया कि मुझे तो IAS का एग्जाम क्लियर करना है और क्यों? So 2015 में आई ज्वाइंड NIT श्रीनगर, जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था BTech. तो ऑलमोस्ट थर्ड ईयर में आते आते आई बिगैन टू रियलाइज दैट आई वांट टू डू सिविल सर्विसेज. तो उस टाइम थोड़ा कॉन्क्रेटाइज हो गया था एंड आई स्टार्टेड डूइंग बेसिक थिंग्स लाइक न्यूज़पेपर और थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स या थोड़ा बेसिक बुक्स उस टाइम मैंने स्टार्ट किए थे थर्ड ईयर में. तो मोस्टली उस टाइम कॉन्क्रेटाइज हुआ था, इन दो मेरे पेरेंट्स ने बहुत पहले से सोच रखा था कि माय फादर फॉर एग्जांपल वांटेड मी टू बिकम अ DM, तो उनका ये दिमाग में था. तो आपके फादर क्या करते हैं? व्हाट इज योर फैमिली बैकग्राउंड? सो माय डैड आल्सो वर्क्स इन गवर्नमेंट सेक्टर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है वो, और माय मॉम इज अ हाउसवाइफ. और बाकी मेरी फैमिली में 3 यंगर सिबलिंग्स है. आई हैव 2 यंगर सिस्टर्स एंड 1 यंगर ब्रदर. दे आर ऑल करंटली डूइंग देयर स्टडीज. ओके, सो ये वाला जो एग्जाम आपने जिसमें आप अपीयर हुए और अभी रिसेंटली भी एक और एग्जाम उसके बाद हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि क्या डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है UPSC का, या आपको क्या चेंजेस लगे प्रीलिम्स में इस बार से और पहले बार से, और आपने पहले भी अटेम्प्ट्स दिए हैं?
बिल्कुल। सो एक चीज जो मैंने देखी है कि विच इज दैट हर साल थोड़ा प्रीलिम्स का पैटर्न चेंज तो होता ही है। 2022 में जब मैंने प्रीलिम्स दिया था तब भी थोड़ा सा चेंज हो गया था कि एलिमिनेशन टेक्निक्स कम हो गई थी, बट 2023 में आके दैट हैज बिकम इवन मोर लाइक सिवियर in that sense. But one thing I would say कि competition एक हिसाब से उतना ही है, because the people that are coming into the exam are same. ओके, सो अगर प्रीलिम्स पेपर लेट से मोर एनालिटिकल बन जाता है, ज्यादा डिफिकल्ट बन जाता है, एलिमिनेशन टेक्निक खत्म हो जाते हैं, तो उसकी वजह से एसेंशियली कट ऑफ भी कम हो जाएगा। सो मैंने इस बार देखा है 2023 का, इवन तो मैंने खुद नहीं लिखा, बट मैंने देखा कि जिन लोगों ने पढ़ाई की थी, मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में ही उनका हो गया। तो आई वुड से कि हाँ, मोर और लेस कंपटीशन सिमिलर रहता है, बट इट कैन बी मोर एनालिटिकल, इट कैन बी मोर डिफिकल्ट। लेकिन प्रीलिम्स इतना ज्यादा चैलेंजिंग स्टेज क्यों होता है कि जो बहुत पढ़ते हैं वो भी प्रीलिम्स फर्स्ट स्टेज ही नहीं निकाल पाते, मेंस तक भी नहीं पहुंच पाते? व्हाई इज इट सो हार्ड? आई थिंक प्रीलिम्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, इट्स अनप्रेडिक्टेबल। तो इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बिफोर हैंड। जैसे आप टेस्ट सीरीज अगर आप लगाओगे कोई भी प्रीलिम्स की, इट विल नेवर बी कि प्रीलिम्स में एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आएंगे और जो आपने पढ़ा होगा एग्जैक्टली वही आएगा। हर साल पैटर्न भी चेंज होता रहेगा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि यू एक्चुअली नेवर नो कि आपको पढ़ना क्या है, तो वो थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। ऑन द अदर हैंड आप देखोगे मेंस में, द मोर यू स्टडी, I have personally felt the more you study, the better you can actually score in mains. But the more you study, there is no correlation directly, maybe sometimes in prelims. मेरे काफी अपने दोस्त हैं जिनको प्रीलिम्स में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मेंस में they can do very well. Okay. So what was your optional subject? My option was anthropology. एंथ्रोपोलॉजी, तो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और अभी हमने पहले भी टॉपर इंटरव्यूज किए हैं तो हमें पता चला कि काफी लोगों ने इस सब्जेक्ट के लिए ऑप्ट किया। सो व्हाट इज द फैक्टर दैट इज अट्रैक्टिंग सो मेनी एस्पिरेंट्स नाउ टुवर्ड्स दिस सब्जेक्ट? और ये काफी सारे कॉलेजेस में तो होता भी नहीं है, पढ़ाया भी नहीं जाता अभी तक। आई थिंक सो व्हाट हैज हैपेंड इज कि काफी टाइम से एंथ्रो वाज स्कोरिंग गुड, स्कोरिंग गुड इन द सेंस के टॉपर्स के ये एंथ्रो होता था उनका ऑप्शनल। तो काफी सारे लोगों ने ये ज्यूम करके एंथ्रो लेना शुरू कर दिया, और उसकी वजह से देयर इज अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज इन द एंथ्रो। सो अगर आप एंथ्रो लेते हो तो आपको टेस्ट सीरीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बुक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड नोट्स विल बी आल्सो अवेलेबल। सो वो चीज है। एंड सेकंड थिंग आई फील कि करंट अफेयर्स नहीं है एंथ्रो में। You see optionals like PSIR, they have constant, you have to constantly update yourself with what is happening in international relations. Anthro mein on the other hand, there is no such thing. So you can do whatever you have to do in static, and current affairs का कोई असर नहीं पड़ेगा आपकी preparation पे. So I think people take that into consideration. And third thing, some people also think Anthro has like lesser syllabus as compared to other optionals. Is that true or is that a myth? I think sort of it depends on how much you study. एंथ्रो का ये है कि जितना आपको ज्यादा मार्क्स लेने हैं तो आपको ऑब्वियसली पढ़ना तो ज्यादा पड़ेगा, तो उसकी वजह से खुद ही सिलेबस एक्सपैंड हो जाएगा। मेरे लिए इस बार, बिकॉज लास्ट टाइम आई हैड गॉट अराउंड 280 इन एंथ्रो, दिस टाइम आई गॉट 328। सो मेरे लिए मुझे लगा कि मतलब इट वाज अ लॉट बिगर देन मेनी अदर ऑप्शंस, क्योंकि वो खुद ही उस लेवल का पढ़ना पड़ा। किस टाइप के टॉपिक्स होते हैं इस सब्जेक्ट में सर? क्या क्या पूछा जाता है? सो एंथ्रो में अगर ब्रॉडली आप देखोगे, हर ऑप्शन में 2 पेपर्स होते हैं। तो पेपर 1 में मोस्टली इट्स 2 पार्ट्स। वन इज बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, ह्यूमन सोमैटोटाइप्स एंड ऑल दोस थिंग्स, ये वाली चीजें डिस्कस करते हैं। और सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में यू मोस्टली डिस्कस अबाउट द सोशियो कल्चरल फिनोमेना लाइक मैरिज, फैमिली, किनशिप। तो ये सारी चीजें वहां पे पढ़ते हैं। फिर पेपर 2 में यू मोस्टली हैव पेपर 1 का इंडियन पार्ट, सो यू विल मोस्टली डील विद इंडियन सोशो कल्चरल कॉन्सेप्ट्स लाइक कास्ट, ट्राइब एंड कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इन चीजों से आप डील करते हो। तो मोस्टली इट्स सॉर्ट ऑफ अ सोशियोलॉजी ओनली, बट विद एडेड पार्ट ऑफ एवोल्यूशन एंड ऑल। तो ये इस टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे कास्ट हो गया, रिलीजन, कम्युनलिज्म, ये टॉपिक्स थोड़े से कंट्रोवर्शियल भी होते हैं। कई चीजों में ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो क्या मेंस में कभी कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें आपको अपना ओपिनियन देने में लगे कि कहीं पता नहीं एग्जामिनर को ये बात पसंद आए या ना आए? डज दैट हैपन? There can be a lot of questions that can sometimes feel like they are probably you might write something that is controversial, or but मेरे को ऐसा लगता है कि what UPSC actually wants is you can write your opinion,
but you have to either give an example or a fact or a Okay. statistic that substantiates To that. support it. ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख के मतलब चले जाओगे तो that will not be considered for marks. There was once a question like I think how secularism is leading to something, secularism and cultural practices पे ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था और काफी लोगों ने सोचा था कि मतलब इसका क्या लिखें, बट दे एक्चुअली वांट टू सी कि आप कैसे सोचते हो. उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हो, उनको बस वो कैसे सोचते हो और क्या आप सब्सटैंशिएट कर पाते हो अपने ओपिनियंस को या नहीं. Okay. So let's start with your prelim preparation. What was your strategy to prepare for prelim और कितने घंटे आपने पढ़ाई करी थी उसके लिए एक दिन में? Prelims में तो mostly I used to prepare for like I think 8 to 10 hours probably. 2020 में जैसे that was my first attempt, तो उस टाइम मेरे को prelims में ज़्यादा टाइम मिला था because of COVID. थोड़ा prelims उस टाइम postpone हो गया था. So prelims का major टाइम तो यही होता है. But when it comes very close, like 2 months before the prelims, then you have to read all day. और strategy उसके बाद prelims की मुझे लगता है if I have to say in one sentence, that is that you have to revise and revise. जो आपके already notes बने हुए हैं वही constantly आपको पढ़ने पड़ेंगे. जितनी iterations आप करोगे उतना आपको याद रहेगा. It's as simple as that. And second thing is you cannot have like half-baked concepts. आपकी conceptual clarity बहुत होनी चाहिए because over time I have also seen that prelims has also become sort of conceptual. They not only ask facts, they also ask concepts. So मेरा ये था कि revise बहुत ज़्यादा करता था notes वगैरह अपने और उसके बाद में test भी काफ़ी लिखता था. तो test लिखने से थोड़ा आदत हो जाती है and थोड़े previous year questions वो सारे एक बार आप देख लोगे तो I think it can be done. Okay, so previous year questions की बहुत ज़्यादा importance है prelims में और कितना कब करने चाहिए PYQ स्टार्टिंग में ही कर लेने चाहिए या फिर अपनी preparation के बाद लास्ट में करने चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे आप जो टॉपिक पढ़ते जाते हो, सो देयर इज दिस बुकलेट फॉर एग्जांपल जो मैंने भी की थी, दिशा की आई थिंक मृणाल सर की जो बुकलेट थी, तो उसमें टॉपिक वाइज उन्होंने हर कोई कैटेगरी के हिसाब से बनाया है. जो भी टॉपिक है उसके हिसाब से क्वेश्चंस कौन आए हैं. सो मैं जो भी टॉपिक करता था उसके हिसाब से वो क्वेश्चंस देख लेता था, कैन आई डू देम और नॉट, एंड देन इफ आई एम नॉट एबल टू डू देम आई विल गो टू द आंसर्स एंड आई विल रीड द आंसर्स और प्रोबब्ली सर्च ऑन द इंटरनेट. तो उससे क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा 2022 में दैट एक्चुअली हेल्प मी because I found out that there was a lot of connection between the questions that were asked in this exam and what I had done in previous year questions. So I think that's a very important strategy. Okay. और ऐसा होता है क्या सर कि जब इतने बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, फ्रेंड्स वगैरह भूल जाओ, सोशल मीडिया डिलीट कर दो, इज दैट इम्पोर्टेंट एंड डिड यू डू दैट? आई थिंक यहाँ पे दो टाइप के पर्सन हो सकते हैं. एक तो है कि जो बहुत इमेच्योरली अगर यूज कर रहा है कोई सोशल मीडिया, लाइक कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया पे दे आर जस्ट वॉचिंग रील्स और डूइंग समथिंग लाइक दैट. आई थिंक इन दैट केस यू शुड डिलीट योर सोशल मीडिया ऐप. अदरवाइज इफ यू आर यूजिंग मैच्योरली, सो फॉर एग्जाम्पल आई हैड व्हाट्सएप एंड ट्विटर भी मेरा था बट कभी ट्वीट नहीं किया. सो आई वुड जस्ट लाइक टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड ट्विटर पे कभी कभी देख लेता था कि बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, बट I knew that I was not overusing them, so इसलिए मैंने delete नहीं किए. But other apps like Instagram and all, I never like used earlier. So ये अपने अपने contextual basis पे depend करता है. बाकी दोस्तों के साथ बाहर जाना and all ये तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब करता ही था. ऐसा भी नहीं है मैं नहीं करता था. कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल social presence खत्म कर देते हैं, but मेरा ऐसा नहीं था. Even though I was in Delhi, sometimes we would still go out or talk. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते हो ना तो वो भी एक काफी हेल्पफुल चीज हो जाती है. तो आपका सर्कल था ऐसा जो और भी एस्पिरेंट्स थे जिसमें जो लोग प्रिपेयर कर रहे थे यूपीएससी के लिए? बिल्कुल. जब हम दिल्ली आए थे तो हम 3 लड़के साथ में आए थे. हमारे कॉलेज से ही हम 3 लड़के प्रिपरेशन कर रहे थे. तो एक फ्लैट में ही रहे थे हम दिल्ली में, एंड वन ऑफ द अदर फ्रेंड्स अमंग दोज 3 ही हैज ऑलरेडी सिक्योर्ड एयर 84 इन दिस एग्जाम. तो हम साथ में जब भी बैठते थे लाइक खाना खाने के लिए या कुछ ऐसा, तो हम मोस्टली डिस्कस करते रहते थे सोशल इश्यूज के बारे में, ऑप्शनल या ये सारी चीजें, तो उससे हेल्प हो जाती है. ओके. तो प्रीलिम्स में काफी सारा सिलेबस होता है और सबसे ज्यादा तो आई थिंक करंट अफेयर्स का, जीके का काफी होता है, जनरल स्टडीज का पेपर. तो वो सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए आपने कोई प्लान बनाया था? किस तरीके से आपने यू मेड श्योर कि आप कुछ भी ना छोड़ के जाएं पेपर के लिए? पहले तो आपको सिलेबस देखना जरूरी है. सिलेबस देख के मुझे ये पता चला कि ऑलमोस्ट लाइक प्रीलिम्स में देयर आर अराउंड 8 सब्जेक्ट्स.
So polity, geography, economy, history, then there is some art and culture and all, environment, Yes. science and tech, and फिर current affairs generally. तो ये सारी चीजें मैंने मतलब प्रॉपरली हर किसी का अलग अलग प्लान बनाया, लाइक पॉलिटी यहाँ से करूंगा, आई टुक आउट द रिसोर्सेज जो भी मेरे पास थे, तो उस हिसाब से मैंने सारा किया, और उसके बाद करंट अफेयर्स हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग से थोड़ा प्रिपेयर किया था। मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स इज मोर इम्पोर्टेंट, प्रोबेबली मेंस में इट माइट नॉट बी दैट मच, बट प्रीलिम्स में इट इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज कभी कभी जो करंट अफेयर्स में चलता है वो प्रीलिम्स में आ जाता है, Okay. even though it might be a static question, but it's still sort of inspired by current affairs. लेकिन अनप्रेडिक्टेबल तो बहुत होता है प्रीलिम्स का एग्जाम, तो आप कुछ नहीं कह सकते कौन से सब्जेक्ट में से कितने क्या क्वेश्चंस आएंगे। बिल्कुल, वो तो है अनप्रेडिक्टेबिलिटी, बिकॉज मैंने पहले भी बोला था, इसलिए इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होता है कि काफी सारे लोग जो अच्छी पढ़ाई करते हैं वो मेंस के स्टेज पे नहीं पहुंच पाते। राइट। और उसके बाद जब आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो आपको आपका कितने मार्क्स आए थे प्रीलिम्स में? सो लास्ट टाइम मेरे 116 आए थे, इस टाइम आई गॉट 106। ओके, मतलब पहले से कम आए थे इस बार आपके प्रीलिम्स? हाँ, बिकॉज मतलब सबके ही कम आए थे, जनरली कट ऑफ कम हो गया था। हाँ ओके, क्योंकि पेपर ज्यादा टफ हाँ, आया था, हाँ, ऐसा था। वही कट ऑफ कम हो जाता है। ओके, और फिर उसके बाद आपने जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ आपने एकदम मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करी होगी, वो तो पहले से भी आपकी चल ही रही होगी ऑब्वियसली। सो लास्ट टाइम भी जैसे मैंने प्रीलिम्स दिया था तो मैं घर आके आई थिंक उसी दिन या दूसरे दिन मैंने की चेक करी और मुझे लगा मेरा हो जाएगा, तो उसके बेसिस पे मैंने वहीं से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था मेंस की। और इस टाइम भी ऑल्दो आई गॉट ओनली 98 फ्रॉम द की, बट उससे भी मुझे लगा कि इस बार हो जाएगा बिकॉज कट ऑफ कम होगा, तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। सो यू कैन नेवर वेट फॉर द रिजल्ट बिकॉज वो 20-25 डेज के बाद आएगा, तो उसके बाद इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट विल बी टू लेट ऑलरेडी। इतनी लंबी जर्नी होती है आईएएस प्रिपरेशन की, पहले प्रीलिम्स है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है, और तीनों स्टेजेस के बीच में काफी मंथ्स का गैप होता है, तो मतलब एक अटेम्प्ट में ही बहुत लंबा समय होता है। तो वो आपका जो मोटिवेशन लेवल है उसको आपने कैसे बरकरार रखा कि वो ना खत्म हो, आप कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की आपने? सो आई थिंक मोटिवेशन यहाँ पे इस एग्जाम में तो मेरे लिए दो जगह से आता था। एक तो है कि जो जनरल पैशन था पहले से कि नहीं करना ही है और करना ही है, और आईएएस को देख के यू गेट अ लॉट इंस्पायर्ड, यू कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो उसकी वजह से एक जनरल अंदर से एक सॉर्ट ऑफ यू कैन से फायर इज इग्नाइटेड विद इन यू, तो वो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। उसके बाद दूसरा जो हर रोज का मोटिवेशन होता है, सो मैंने ये बहुत पहले भी बोला है कि मैं रोज रोज प्लान करता था, लाइक आई वुड प्लान फॉर द मंथ, फॉर द नेक्स्ट मंथ, एंड फॉर एवरी सिंगल डे आई वुड राइट डाउन कि कौन सा टेस्ट मुझे करना है, क्या पढ़ना है, एंड शाम को जब मैं वो देखता था कि मैंने किया कि नहीं, इफ आई वुड हैव कंप्लीटेड लाइक 80% और 90% ऑफ द टारगेट, तो मैं खुश हो जाता था, और फिर मैं सोचता था कि चलो नेक्स्ट डे आई विल प्रिपेयर अगेन प्रॉपर्ली। तो वो छोटे छोटे गोल्स को अचीव करने से भी थोड़ा मोटिवेशन आई थिंक मिल जाता है। पर ये सब कुछ सेल्फ मोटिवेशन ही है, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होते हैं जो कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कुछ टाइम पढ़ाई करने के बाद, उनको लगता है कि बस अब और नहीं हो रहा है, या फिर इधर उधर दिमाग लग गया, या कोई जॉब मिल गई तो उन्होंने सोचा ठीक है चलो छोड़ो अब जॉब कर लेते हैं। सो आई थिंक इसमें कंसिस्टेंसी इज द की, राइट? क्योंकि बहुत सारे लोग तो शायद इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते थ्रू आउट। राइट, सो इसमें फॉर एग्जांपल तो कंसिस्टेंसी का ये मतलब है कि इवन इफ समडे यू आर नॉट willing to study but you still study for 6 to 8 hours for example, तो आपने आज 12 घंटे पढ़ लिया, कल आपने अगर छोड़ दिया तो आपका वो ओवरऑल इट विल नॉट बी वेरी इफेक्टिव। ऑन द अदर हैंड व्हाट हैपेंस इन दिस एग्जाम, अगर आप रोज रोज 6-6 घंटे भी पढ़ते हो ना, ओवर टाइम इट विल बिकम क्यूमुलेटिव, सो यू विल हैव अ लॉट मोर क्यूमुलेटिव नॉलेज देन एनी अदर पर्सन हु रीड्स like 24 hours one day and then nothing in the next day। तो ऐसा कोई टाइम लिमिट, आइडियल टाइम लिमिट है क्या कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो दिन में आपको इतने घंटे तो पढ़ाई करनी चाहिए? नहीं, मुझे लगता है ऐसा कोई टाइम लिमिट तो नहीं है, इट विल कंप्लीटली डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट कि the person who is studying how much focused they are, probably some people may be able to read more in 6 hours than other people in 10 hours, तो वो context पे तो depend करेगा, but I think when it gets very close to exam, for example either you are like 2 months away from prelims or probably 2 months away from mains, then mostly मैं तो उस टाइम पे जब भी मैं awake होता था I would keep studying, that was the simple formula, like there was no other time, and बाकी जब either you get tired or something you just sleep or probably you eat something, तो
जब बहुत क्लोज होता है तब मोस्टली पढ़ना पड़ेगा, और जब प्रॉब्लली थोड़ा सा दूर हो तो तब आप अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें। तो जब आपकी 225 रैंक आई थी, आपने तब भी ज्वाइन कर लिया था IRS। हाँ। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई होगी, तब भी आपने सोच रखा था कि आप फिर से अटेम्प्ट देंगे, तो ऑब्वियसली आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी, तो आपको तब टाइम कैसे मिलता था, आप कैसे मैनेज करते थे अपना स्केड्यूल? सो उस टाइम जब आई थिंक सितंबर 2021 में हमारा रिजल्ट आया था CSE 2020 का, आई गॉट रैंक 225। मेरे को पहले दिनों में ही पता चल गया कि आई विल हैव टू राइट द एग्जाम अगेन टू गेट इन द टॉप 70। सो मार्च 2022 में मैंने ज्वाइन किया था NIT नागपुर में। सो ज्वाइन करके ही मैंने लीव डाल दिया। सो एवरी एकेडमी, मोस्टली ऑल ऑफ द एकेडमीज हैव दिस ऑप्शन ऑफ पुटिंग अप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ऑलमोस्ट 1 साल का मिलता है, हमें दिसंबर 2022 तक लीव मिला था, और उस टाइम में मैंने प्रीलिम्स और मेंस कंप्लीट कर लिया। सो उसके बाद जब मैं वहां गया, वहां पे मुझे मोस्टली इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी पड़ी। लाइक आई वुड डू द क्लासेस इन द डे, एंड शाम को घर आके हॉस्टल पे आके आई वुड डू इंटरव्यू प्रिपरेशन। ओके, तो ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव होती है, आराम से मिल जाती है या इसके लिए कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है? So most of the services would give extraordinary leave very easily, but there are some services like I think audit and account service, trade service, जहाँ पे EOL नहीं मिलती, तो एंड फॉरेन सर्विस में भी EOL नहीं मिलती, तो आप मतलब अपने अपनी सर्विस के हिसाब से होता है, बट एज फार एज IRS इज कंसर्न वहाँ पे लीव तो इजीली मिल गया। ओके, दैट्स गुड। और फिर मेंस की जो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, वो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं मेंस में भी, तो आपने किस तरीके से किया? क्या आप साइमल्टेनियसली सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते थे, या आपने 2-3 उठाए, या एक एक करके किया? व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी फॉर मेंस सिलेबस? सो CSE 2022 में मेरा स्ट्रैटेजी था कि फोरनून जो दिन का होता है उसमें मैं ऑप्शनल प्रिपेयर करूंगा, तो सारा टाइम फोरनून का ऑलमोस्ट 1 तक ऑप्शनल प्रिपेयर करता था। उसके बाद आफ्टरनून में मैं एक सब्जेक्ट ले लेता था, जो भी लाइक हिस्ट्री और ज्योग्राफी और जो भी, तो उसका प्रिपेयर करता था, एंड शाम को मैं कुछ रिविजन्स एंड टेस्ट सीरीज एंड ऑल वो सब देख लेता था। ओके। और आपको कितने मंथ्स लगे होंगे ये सब कुछ कवर करके, खत्म करके, उसके बाद इतना रेडी होने में कि अब आप आराम से कॉन्फिडेंटली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकें? सो मॉक टेस्ट के लिए आई वुड से कि एटलीस्ट 1-2 रीडिंग तो होनी ही चाहिए। इस बार क्या था कि मैंने ऑलरेडी एग्जाम किया था, सो मेरे लिए इट वाज इजी। जैसे ही मैंने मतलब प्रिपरेशन इस बार फिर से स्टार्ट करी एग्जाम की, तो आई स्टार्टेड राइटिंग द मॉक टेस्ट। लास्ट टाइम व्हाट आई हैड डन वाज, अर्लियर आई यूज्ड टू राइट जस्ट प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, तो काफी टाइम के लिए प्रीलिम्स मॉक टेस्ट लिखे। फिर जब प्रीलिम्स पोस्टपोन हो गया था कोविड की वजह से, देन आई स्टार्टेड टू राइट सम मेंस के मॉक टेस्ट। आई वुड से एटलीस्ट हर सब्जेक्ट की लाइक एक रीडिंग आपने करी है, तो स्टार्ट राइटिंग मॉक टेस्ट, सम सॉर्ट ऑफ मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी आपको ठीक लगे, सो दैट लेटर ऑन आपको ये ना हो कि आप प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ही प्रिपरेशन कर रहे हो। उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है कि कम टाइम है, वो इट्स ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स, उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। द मोर यू प्रिपेयर बिफोर प्रीलिम्स द बेटर इट इज, आई थिंक। और मेंस की प्रिपरेशन में जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो आंसर्स लिखने के लिए, तो आपने प्रैक्टिस तो कर लिया, बट आपको ये कौन बताएगा कि ये आंसर अच्छा है या नहीं है, या यूपीएससी इस पे कितने मार्क्स देगा? सो हाउ डू यू गेट दोज आंसर्स इवैल्यूएटेड? सो एवरी कोचिंग सेंटर आई थिंक हैज अ टेस्ट सीरीज, तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज लेंगे तो वो इवैल्यूएट तो करेंगे ही। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मतलब आप सेल्फ इवैल्यूएशन भी करें इन क्वेश्चंस का। व्हेन यू सी द रिव्यू ऑफ द एग्जामिनर, जिसने भी वो लेट्स से कोचिंग सेंटर में इवैल्यूएट किया है, तो आप एक बार देखिए कि मतलब सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ इवैल्यूएशन सबसे अच्छा रहता है, बिकॉज यू नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। जैसे इस बार मैं क्या करता था कि आई वुड राइट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और फिर मैं खुद से देख लेता था या मैं अपने दोस्त को दिखा देता था। तो अगर आपका दोस्त ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव सम फ्रेंड इन द एग्जाम, तो उनको आप दिखा सकते हो, या आप खुद क्या कर सकते हो कि एक बार पेपर देख लिया, आंसर देख लिया, तो आप सोचो कि आपने क्या क्या नहीं लिखा जो आपने लिखना चाहते थे। जैसे आपने डायग्राम नहीं बनाया, जैसे आपने कोई फैक्ट नहीं लिखा जो आपको पता था, तो देन नेक्स्ट टाइम व्हेन यू राइट द आंसर, make sure that beforehand you remind yourself to write those things. तो वो कौन सी चीजें हैं जो हमें सेल्फ इवैल्यूएशन के टाइम अपने आंसर में देखनी चाहिए, और बेसिकली व्हाट आर दोस थिंग्स दैट मेक अप अ गुड आंसर दैट यूपीएससी रिवॉर्ड्स? I think the first thing is answering the demand of the question rather than what you think the question is. तो क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़िए एक बार, और उसके हिसाब से आंसर लिखिए। तो काफी सारे लोग जैसे प्रोज एंड कॉन्स लिख दिए, that is not the question, then you will not get the marks. So that's one thing that I would say. The second thing is that
the introduction, for example, it should be very relevant. Relevant in the sense, जैसे अगर कोई difficult टर्म है जो क्वेश्चन में यूज किया है तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो, या कोई स्टेटिस्टिक उस चीज के रिलेटेड, या कोई कोट और समथिंग लाइक दैट. देन बॉडी में यू शुड हैव आर्ग्यूमेंट्स, एंड देन आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर यू शुड बी एबल टू सब्सटैंशिएट ईच आर्ग्यूमेंट विद एन एग्जांपल और प्रोबब्ली अ कोट और सम फैक्ट. तो यूजुअली अर्लियर टाइम्स में क्या होता है कि बॉडी में आप आर्ग्यूमेंट्स तो लिख लेते हो, ओपिनियंस बहुत सारे होते हैं, बट यू डोंट हैव अ फैक्ट, यू डोंट हैव एन एग्जांपल. तो वो सारी चीजें थोड़ा थोड़ा करके यू हैव टू बिकम बेटर एट देम. Then conclusion में you have to write something positive, what to do, probably some government initiative or some SDG or something like that. I think broadly if you do these things in an answer, you will be fine. Then, but there is another level which is that every subject will have a sort of different sort of answer writing pattern. Like geography में आपको maps बनाने पड़ेंगे ज़्यादा, society में आपको थोड़े से diagrams बनाने पड़ेंगे. तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखोगे, I think you will write a good answer. ओके. तो जो ज्योग्राफी और मैप्स की अगर हम बात करें तो आई हैव बीन हियरिंग कि इसका जो इम्पोर्टेंस है वो अब काफी बढ़ गया है यूपीएससी में. इज दैट ट्रू? और इफ यू प्रिपेयर मैप्स प्रॉपर्ली, हाउ डज इट हेल्प यू इन स्कोरिंग वेल? सो ज्योग्राफी की मैपिंग वाला पोर्शन जो है, आई थिंक इट्स बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट इन प्रीलिम्स एज वेल. सो प्रीलिम्स में जैसे देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट लोकेशंस, कि ये लोकेशन, ये रिवर यहाँ से जाता है. So if you know the map of our country well, or you know the map of the world, physical, political, जो भी, वो आपको prelims में भी help करेगा, and mains में you have to be able to make a map very fast. Like India का map या world का map आपको बहुत तेज आना चाहिए. तो उससे क्या होगा कि जो भी, for example, let's say कि आयरन के बारे में क्वेश्चन है, आयरन माइंस के बारे में क्वेश्चन है, तो आप एक मैप बना के दिखा देंगे कि झारखंड में कहाँ कहाँ पे है, तो that will add value to your answer. Otherwise, if you just keep writing, it becomes difficult both for the examiner and yourself to explain that thing well. So मुझे लगता है that's why it's becoming more important. तो मैप्स का मुझे ये लगा कि इस बार मैंने क्या किया था कि I had already prepared almost all of the maps जो भी मुझे लगे कि आ सकते हैं. जैसे सारी इंडस्ट्रीज के मैप्स कहाँ कहाँ पे है, सारे माइंस के मैप्स कहाँ कहाँ पे है, रिवर्स कहाँ से जाते हैं. सो जितना आप पहले से प्रैक्टिस करके रखोगे, I think in the exam it will be easier for you to do that. और मैप्स बहुत सारे होते हैं और कई लोगों को तो मैप्स याद भी नहीं होते. तो मैप्स को किस तरह पढ़ना चाहिए और हाउ कैन यू बेसिकली मेमोराइज देम टू रिप्रोड्यूस देम इन योर एग्जाम? आई थिंक ये प्रॉब्लम सबके साथ है. मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती थी कि जब मैंने ऑलमोस्ट 30-40 मैप्स बनाए थे ज्योग्राफी के, देन आई वुड थिंक फॉर एग्जांपल कि कोल की माइंस कहाँ हैं, तो मेरे दिमाग में आयरन की भी आ जाती 2-3 साइट्स. सो यू आर नॉट एग्जैक्टली एबल टू रिमेंबर, बट what I feel maps have to be representative rather than very exact. Okay. तो जैसे आप फॉर एग्जांपल कोल का आपको पता होना चाहिए कि झारखंड के अराउंड जो भी माइंस हैं ब्रॉडली, ठीक है, वो है, या कर्नाटक के अराउंड जो भी हैं, तो कहाँ, ऐसा नहीं कि आप अचानक से मतलब कहीं और बना दिया जहाँ पे है नहीं, वो नहीं होना चाहिए. बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बिल्कुल एग्जैक्टली बना रहे हो. या दुनिया की फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, माइक्रोचिप इंडस्ट्री, तो आपको एग्जैक्टली भी अगर पता नहीं हो, रिप्रेजेंटेटिव मैप्स आप बना सकते हो. So essentially मुझे ये लगता है कि what you need to know is the broad locations of those places rather than the exact probably sites and all. अगर sites याद हैं तो better है, अगर नहीं हो रही तो broad locations at least याद कर लीजिए. तो मैंने ऐसा किया था कि इंडिया के जो मैप्स हैं वो मैंने almost exactly याद किए थे, but world के जो मैप्स हैं वो broadly याद किए थे, because उसमें मुझे लगा कि काफी सारी जगहें हैं जो रिपीट हो रही हैं. जैसे यूरोप का कोई पोर्शन है तो वो रिपीट हो रहा है, अटलांटिक ओशन में कोई पोर्शन है वो रिपीट हो रहा है, तो उस हिसाब से मैंने रखा कि चलो जब भी आएगा तो ये पोर्शंस तो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा. That is very smart strategy for maps. अच्छा सर, वो कौन सी चीजें हैं जिससे आंसर में मार्क्स कट सकते हैं आपके मेंस में? हाँ, सो जो मैंने पहले बोला, जैसे आपने डिमांड ये नहीं की, डिमांड फुलफिल नहीं की आंसर में, तो उससे तो ऑब्वियसली मार्क्स कटेंगे, मार्क्स कम आ जाएंगे. कोई एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे आप किस तरह फुलफिल नहीं की डिमांड? सो लेट्स से फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के बारे में एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इश्यूज और द पोटेंशियल ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, और आपने जनरल फूड सेक्टर के बारे में लिख दिया. ओके, ठीक है, और आपने एग्जैक्टली वो इश्यूज वगैरह डिस्कस नहीं किए, तो आपको उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे. चाहे मे बी आपने एक पॉइंट लिख दिया फूड प्रोसेसिंग का, बाकी कुछ और है, तो उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे. सेकेंड थिंग इज कि आपने लेट्स से इंट्रोडक्शन में ऐसा कुछ कर दिया कि वो कंप्लीटली इररिलेवेंट है उस चीज से, कि वुमेन पे कोई क्वेश्चन आ गया कि डोमेस्टिक वायलेंस, लेट्स से देयर इज अ डोमेस्टिक वायलेंस क्वेश्चन, यू आर आल्सो राइटिंग अबाउट वुमेन ओनली बट यू आर नॉट एग्जैक्टली फोकसिंग ऑन डोमेस्टिक वायलेंस, तो आपने कुछ ऐसा लिख दिया
कुछ और लिख दिया जो women के related ही है, glass ceiling or something like that, but it's not related to domestic violence, so that will not fetch you marks. या आपने आई थिंक सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज जो हो जाती है इनसे भी ज्यादा, विच इज दैट यू आर राइटिंग ओपिनियंस विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ सब्सटेंशिएशन। Okay. कि आपने कुछ लिख दिया और उसके नीचे कोई एग्जांपल, कोई स्टैटिस्टिक, कोई डेटा नहीं है, तो उसकी वजह से मार्क्स तो ऑब्वियसली उस क्वेश्चन में कम आएंगे। एंड अल्टीमेटली अगर अपने कंक्लूजन में आई थिंक यू आर जस्ट समराइजिंग, तो ऐसा आदत होती है सबकी कि हेंस ऊपर जो भी लिखा हेंस दिस दिस दिस, तो वैसा नहीं करना है। इट हैज टू बी समथिंग डिफरेंट, इट हैज टू बी पॉजिटिव, फ्यूचरिस्टिक। थोड़ा सा अब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स लिख दो, थोड़ा एसडीजीज लिख दो, प्रोबेबली फ्यूचर का लिख दो कुछ कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो उससे आपको मार्क्स मिलेंगे रादर देन जस्ट समराइजिंग व्हाट यू हैव सेड इन द आंसर। तो स्टेटिस्टिक्स और डेटा की बहुत ज्यादा वैल्यू Right. है, और इतने सारे डेटा याद करना और किसका डेटा याद करना चाहिए किसका नहीं, ये कैसे पता चलता है? सो देखिए, मैंने ऐसा किया था कि मैंने चारों जो जीएस थे उनमें चारों में एक शॉर्ट नोट्स बनाए थे। जैसे हर कोई टॉपिक है, अभी हम फूड सेक्टर की बात कर रहे थे, तो फूड सेक्टर के रिलेटेड देयर विल बी सम स्टैटिस्टिक्स जो आपको हर जगह मिल जाएगी कि 40% ऑफ द फूड इज वेस्टेड, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है। तो ऐसा एक स्टैटिस्टिक आप वो साइड में लिख लो उसके। तो मैंने क्या किया था कि जो जैसे GS1 है तो उसमें पहले एक टेबल फॉर्मेट में 3 कॉलम्स रखे थे। पहले टॉपिक रखा था, उसके बाद उसकी स्टैटिस्टिक रखी थी, उसके बाद कोई कमिटी वगैरह कर कुछ बोलती है। Okay. तो फूड सेक्टर के साइड में मैंने लिख दिया कि 40% वेस्ट होता है, ये फूड ऑर्गेनाइजेशन ने बोला। देन उसके बाद अगर कोई कमिटी उसके रिलेटेड है जिन्होंने कुछ बोला है फूड सेक्टर के बारे में, तो आई वुड राइट दैट देयर ओनली, एंड देन आई वुड कीप लाइक रिवाइजिंग दैट थिंग। वो शॉर्ट नोट्स मैंने काफी रिवाइज किए। उसकी वजह से ये हुआ कि जब भी फूड सेक्टर पे आता था तो मेरे दिमाग में आ जाता था कि ये वाली चीज मैंने पढ़ी थी, एंड आई वुड जस्ट राइट दैट। I think you have to write the data at like a particular place, gather all the data and then keep repeating. ओके, तो लाइक अभी बहुत फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस भी आने लगे ना एग्जाम में। आपका जो पेपर था उसमें तो आई थिंक पहली बार हुआ था कि इतने सारे फिलोसॉफिकल कोट्स दिए गए थे एंड यू हैड टू राइट आंसर्स ऑन देम। So essays में I think ना फिलोसॉफिकल और कोड बेस्ड आप बोल सकते हो, वो वाले क्वेश्चंस आते हैं। पहले ये होता था कि एक सेक्शन, जैसे ऐसे में जो होता था ऐसे में, बिकॉज देयर आर 2 सेक्शंस, पार्ट ए एंड पार्ट बी, और एक सेक्शन में नॉर्मल सोशल इश्यूज आते थे, कुछ जीएस से आ गया और समथिंग, एंड सेकंड सेक्शन में देयर वाज सम फिलोसॉफिकल एसे। अब ये हुआ कि ऑल ऑफ द एसेज आर ऑलमोस्ट फिलोसॉफिकल, ओनली कोड बेस्ड। बट मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली कि आई थिंक दे आर इजियर टू राइट देन अदर सोशल इश्यूज और प्रोबब्ली जीएस, बिकॉज जीएस में ऐसा होता है ना, सबको पता है, सेम चीजें पता है, एंड एवरीबडी विल राइट द सेम थिंग, एंड अब कितना डेटा यूज करते हो उस पर डिपेंड करेगा। ऑन द अदर हैंड फिलोसॉफिकल एसेज में देयर इज मोर क्रिएटिविटी, कि आप उस चीज को कैसे देखते हो, आप उसके हिसाब से लिखोगे, अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस या जो भी आपने पढ़ा है वहां से एग्जांपल्स लेके आप लिख सकते हो। आई थिंक इट बिकम्स इजियर एंड इट बिकम्स आल्सो सॉर्ट ऑफ लाइक क्रिएटिव एंटरप्राइज। उसकी वजह से जिन लोगों को ज्यादा प्रोबब्ली पता है, ज्यादा वेल डेवलप्ड पर्सनालिटी है, उनके अच्छा मार्क्स आते हैं रादर देन जस्ट क्रैमिंग पे बेस्ड। बट सर ये जो कोट्स होते हैं काफी वेग कोट्स होते हैं। जब मतलब अब जैसे हम लोगों ने तो प्रिपरेशन करी नहीं है यूपीएससी की, तो जब हमने पेपर देखा तो वी वर लाइक कि मतलब what do they want to hear, इसमें कोई क्या लिखेगा, एक पूरा का पूरा ऐसे, और यूपीएससी क्या जानना चाहता है और कैसे हम इसको गवर्नमेंट से या उन चीजों से कनेक्ट करें जो रेलेवेंट हैं यूपीएससी से। सो दैट साउंडेड वेरी वेग टू अस। जैसे कि आई थिंक कोई शिप इन अ हार्बर वाला कोट था, कोई स्माइल के ऊपर भी कोई कोट था। तो वो सब कैसे आपको पता चला कि मुझे इस पे क्या लिखना है और क्या यूपीएससी सुनना चाहता है? सो मुझे लगता है कि कोट्स का ये होता है, जिसने भी वो कोट बोला होगा उसने किसी कॉन्टेक्स्ट में बोला होगा। सो जब भी आप कोई कोट देखते हो ना, तो आपको एक तो वर्ड्स दिखते हैं, बट उसके पीछे आपको कुछ ना कुछ एसेंस तो समझ आएगी। जैसे आपने हार्बर वाला बोला, शिप्स आर सेफ इन द हार्बर बट दैट्स नॉट व्हाट दे आर मेंट फॉर, ऐसा कुछ था इस बार ऐसे, और मैंने भी यही लिखा था। तो मुझे जो इससे एसेंस पता चला, व्हिच वाज दैट लाइक इट कैन बी अप्लाइड टू एनीबॉडी, लाइक ह्यूमंस में भी we can be safe like sitting at our parents home or something like that, and we don't go out, we don't compete with other people, then we will never fail, we will be safe. But that is not what we are meant for. We are meant to go out, we are meant to compete, we are meant to become sort of anti fragile. तो मुझे मतलब ये एसेंस जब मुझे समझ आया तो मैंने उसके हिसाब से फिर ऐसे को थोड़ा मोल्ड किया। तो जैसे मैंने एक देयर इज वन गाय डेविड गॉगिन्स, तो उसका मैंने एग्जांपल लिखा कि वो कैसे पहले बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स में काम करता था, and he would not do anything, he was safe, sort of safe in his job, and then he thought of going out and
आर्मी, सी, नेवी सील एंड ऑल में वो चला गया। तो ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा आप अलग अलग एग्जाम्पल से उस चीज को सब्सटैंशिएट कर सकते हो, बट यू अंडरस्टैंड अबाउट दैट थिंग। सेकंड थिंग इज मे बी देयर कैन बी अदर एसेज आल्सो जिसमें आप गवर्नेंस सिस्टम्स का लिख सकते हो। जैसे अनदर ऐसे वाज देयर कि द बेस्ट टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। तो उसमें मैंने लिखा कि फॉर एग्जांपल जो भी पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली अगर कोई प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, तो वो कैसे ठीक करनी है अभी, सो दैट वी डोंट हैव टू रिग्रेट लेटर। डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है एंड ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज द सन इज शाइनिंग राइट नाउ। सो उस हिसाब से आपको एसेंस पे आई थिंक ज्यादा जाना है। अगर आप वर्ड्स पे चले गए तो फिर इट विल बी डिफिकल्ट टू राइट। And another thing that I would say कि when you are in the preparation, you have a lot of material to write, but you just have to connect it to the essay. Okay, so I'm guessing कि ये जो philosophical quotes आने लगे हैं, the purpose is to test your creativity, your thinking abilities, plus how much you can connect the knowledge of the world to your real life situations, right? Right. I think so. So that is tricky, but I think that's also good क्योंकि you get to, you know, show how you're better than the others in this Absolutely. regard. अभी आपने इतना, मतलब आप किसी भी ग्रेट पर्सनालिटी से बात करोगे तो आपको पता चलेगा वो अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस और थ्योरेटिकल नॉलेज को कंबाइन करके बात करते हैं। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही है, आपको कोर्ट और अपना जो एक्सपीरियंस है, चाहे यूपीएससी या यूपीएससी से बाहर जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपको पता है, वो कंबाइन करके बोलना है। ओके, तो इस टाइप की जो क्वेश्चंस हैं, एसेज, इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को? क्योंकि ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि आप कौन सा कोड दे देगा यूपीएससी, और ना ही हमें पता हो सकता कि इतने सारे कोड्स लोगों ने इतना कुछ बोला हुआ है। सो लाइक हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर दिस? सो एसए की प्रिपरेशन मोस्टली जीएस की प्रिपरेशन से ही होती है। सो जब आप जीएस की प्रिपरेशन कंप्लीट करेंगे, आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टेक एसए टेस्ट सीरीज और समथिंग लाइक दैट। तो हर हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार आप एक ऐसे लिखिए। जब आप एक बार पहले से टेस्ट सीरीज में ऐसे लिखेंगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे कनेक्ट करना है। मुझे लगता है कि जीएस में जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, वहां से बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं जो एसेज में यूज होती हैं, या एथिक्स में हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे वो एसे में यूज होंगी। तो जीएस से आपका नॉलेज तो हो जाएगा, बस देन यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर फ्रॉम द टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई थिंक दैट वे यू विल बी एबल टू राइट इन द रियल एग्जाम। अदरवाइज आप रियल एग्जाम में जाके you will not be able to understand कि कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या लिखना है। अच्छा, जो यूपीएससी जो जीके पूछता है वो और एग्जाम से कैसे डिफरेंट होता है? किस टाइप की जनरल नॉलेज चीजें होती हैं जो मोस्टली आप यूपीएससी इज इंटरेस्टेड इन नोइंग फ्रॉम यू? आई थिंक यूपीएससी हैज लाइक अ वास्ट लाइक डोमेन जहाँ पे वो पूछते हैं। एक होते हैं जो बिल्कुल फैक्चुअल नॉलेज होगी, वो भी कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे प्रीलिम्स में स्पेशली, यू विल सी कि बिल्कुल फैक्चुअल कि ये वाले रिवर का क्या नाम है दूसरा, और समथिंग लाइक दैट, जो बहुत फैक्चुअल है, जो आपको अगर पता है तो पता है, अगर नहीं पता तो नहीं पता। देन देयर विल बी सेकंड विच इज कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, कि आपकी पर्टिकुलर, जैसे ज्योग्राफी में लेट्स से देयर विल बी अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन, दिस दैट। तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके अगर क्लियर हैं तो दे विल मेक सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रिकी क्वेश्चन ऑन दैट कॉन्सेप्ट, और आपको वो फिर सॉल्व करके देना पड़ेगा। तो ये 2 क्वेश्चंस होंगे। एंड देन देयर विल बी थर्ड विच इज डायरेक्टली फ्रॉम करंट अफेयर्स, कि कोई करंट अफेयर्स में लेट्स से प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड सम स्टैचू, रामानुज का स्टैचू लास्ट टाइम इनॉग्रेट किया था, तो वो आ गया था कि रामानुज का फिलॉसफी क्या था, तो उसके रिलेटेड कुछ आ सकता है। मोस्टली ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई पर्टिकुलर डोमेन नहीं है यूपीएससी का, मुझे लगता है एज फार एज दिस थिंग गोज, जनरल नॉलेज गोज। तो करंट अफेयर्स के लिए हमें कुछ पर्टिकुलर रिसोर्सेज हैं जो चूज करने चाहिए, जो बेस्ट है, या फिर इट इज इम्पोर्टेंट टू रीड एंड लर्न फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज, तभी आपके कवर हो पाएंगे? सो मैंने तो ऐसा किया था, और मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए रोज रोज, एक न्यूज़पेपर, या द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आपको ठीक लगे। सेकंड थिंग इज न्यूज़पेपर के बाद आपको मंथली एक मैगजीन पढ़ना पड़ेगा। कोचिंग सारे मैगजीन्स के साथ दे विल पब्लिश सम मैगजीन रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज, यू कैन टेक एनी वन ऑफ दोस मैगजीन्स एंड रीड दैट। उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है वो एक मंथ के बाद आपका रिवाइज हो जाएगा फिर से। एंड ओवर टाइम व्हेन यू बिकम वेरी क्लोज टू प्रीलिम्स, there are a lot of magazines that come that are related to prelims, like they will organize the different topics, तो वो आप ले सकते हो, या आप मंथली से ही कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से एज फार एज आई डिड, मैं तो इधर उधर ज्यादा वेबसाइट्स पे नहीं गया, मैंने यही सोर्सेस फॉलो किए, बिकॉज देयर इज नो टाइम। इफ यू डू दैट probably it will also waste your time for the static. You also need to focus a lot on static because that's the major portion of this exam.
सर कभी किसी ने मुझसे कहा था कि विकिपीडिया इज ऑल्सो अ गुड सोर्स, कि आप कोई भी टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं तो पहले फटाफट उस पे विकिपीडिया की इंफॉर्मेशन सारी देख लीजिए, एक ओवरव्यू, और उसके बाद थोड़ा डीप में जाइए. इज दैट ट्रू? यस, आई थिंक सो. आई थिंक स्पेशली मैंने जैसे ऑप्शनल में कोई कुछ टॉपिक्स होते थे जो कि मुझे कहीं से मिलते नहीं थे, एंड देन आई वुड जस्ट सर्च विकिपीडिया. एंड विकिपीडिया पे मैं जाके एक बार ब्रॉड उसका आउटलाइन देखता था, उसके बाद में बाकी सोर्सेज कंसल्ट करता था या रिसर्च पेपर कंसल्ट करता था. विकिपीडिया का व्हाट इट वुड डू इज इट विल टेल यू द बेसिक all the basic things, and then it also has links to other articles and all that you can read. तो वो वाली चीज मुझे लगती है कि हाँ, it can be useful in a lot of ways. क्या आपकी प्रिपरेशन में कभी आपको ये चैलेंज फेस हुआ कि आपने एक ही टॉपिक पे दो जगह अलग अलग फैक्ट्स देखी, जैसे कि ईयर मैच नहीं हो रहे हैं या फिर कुछ डिफरेंट चीजें हैं, तो देन हाउ डिड यू फाइंड कि ये बेटर है, मे बी दिस इज द राइट वन, आई शुड? सो ये तो आपने बहुत पिक्यूलियर प्रॉब्लम पॉइंट आउट करी जो मैंने भी फेस की है कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज डिफरेंट डेटा सोर्सेज में अलग अलग ईयर्स हो सकते हैं या अलग अलग डेटा समटाइम्स हो सकता है, तो वो इशू तो आएगा. सो व्हाट यू नीड टू डू इज स्टिक टू वन सोर्स. इट इज नॉट नेसेसरी कि आप दोनों को कंफ्यूज करके करें. अगर कोई गवर्नमेंट डेटा है तो देन इट्स बेटर टू टेक आई थिंक दैट वन. जैसे लेट्स से कि इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ बोला है और वर्ल्ड बैंक ने कुछ बोला है, तो देन इट्स बेटर टू टेक इकोनॉमिक सर्वे का डेटा. But even if you write World Bank का data, it will not be that much like problematic. But what you need to keep in mind is कि ऐसा नहीं कि कोई random गलत data है. बस proper source किसी से होना चाहिए, नीति आयोग, World Bank, जो भी economic survey. You can just write that. What I used to do in this case was जो भी latest होगा तो उसको मैं लेके लिख देता था. Okay. So lastly, what are some of your advices to current aspirants to clear the UPSC exam with a very good score and rank? So I think one advice is जो हमने पहले भी discuss किया, which is the most important, which is consistency. Please maintain consistency while you are preparing. Make sure that you are making long-term plans. If the exam is 3 months down the line, then make a plan for 3 months. Break it down into 1 month, then weekly targets and daily targets. So that plan will help you like stay on the path and not veer from one side to another side. So one is that consistently do that thing. Second thing is when you are close to the exam, stay away from any sort of distraction. I think if you have social media, probably you are using it too much or something like that, then stay away from that. Third would be also keep this exam like as a part of your life rather than life itself. Sometimes we are not able to see the big picture. ये मेरे साथ भी कभी कभी होता था और सबके साथ होता है. उसकी वजह से you will get anxious and then you will not be able to perform well. You need to stay calm in this exam. I think that's also one thing, especially in prelims. If you're calm, you will be able to do well even if you have studied less. So please make sure that you are calm. You don't think too much, you don't overthink. And उसके बाद last में keep revising the things that you have already read rather than going to new sources. So once you keep revising that thing, you will remember it better. It will be better for you in the long term. Thank you so much, sir, for Thank you. taking out time for us and giving us all these important advices and suggestions. It was very insightful interview and congratulations once again. Thank you, ma'am. Thank Thank you you so much.